Hello everyone. Let's continue with this question. So here relation R is given with attributes A, B, C, D, E, F. Right? These are the attributes given, and functional dependencies are FDs are given as AB goes to C, AB goes to C, C goes to DE, C goes to DE, E goes to F, E goes to F, F goes to A, F goes to A. So these are the functional dependencies given. Now we need to find out the candidate keys. What are the candidate keys? Yes, try for this one. Okay, let me simplify this one. So if we observe these functional dependencies that AB goes to C, AB goes to C, C goes to DE, E goes to F, and F goes to A. It look like that AB can be the candidate keys, right? It can derive all the attributes, or AB can be the super key. Let's see. So AB closure. We'll take the AB closure. So what is the AB closure? AB itself. AB can derive C. C can derive DE, and E can derive F, and F can derive A. So already A is present. So this is the deriving all the attributes, right? So AB closure, that is determining all the attributes. It means AB is a super key. AB is a super key. Now for the candidate key, we'll check for the proper subset of this super key, right? So we'll take the proper subset of this one. What are the proper subset? A and B, right? A and B. Now we'll check for the closure of A. Closure of A is A itself, and further no. So this is not the super key. What about closure of B? If we take the closure of B, it is B itself. So B is also not the super key, right?
So we can say this is the minimal super key, which is the candidate key, right? So AB is the candidate key. So let me write down here. AB is candidate key. Yes, till this part, is it fine to all? यस, फटाफट सभी रिस्पॉन्ड कर देंगे. Okay, fine. Now we know that there can be the further candidate keys, right? So non-prime attribute, if it is deriving the prime attribute, then there is a chance that there will be the further candidate keys. Now what are the prime attributes? So prime attributes are A and B. So AB is the prime attribute. So we'll check in right hand side there is a prime attribute or not. Yes, in the right hand side there is a A, right? This is the prime attribute, and in the left hand side this is what F. F is the नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे बन रही है, राइट? अगर ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि देर इज ए चांस दैट देर विल बी द मोर कैंडिडेट कीज, राइट? तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे? एफ ए को डिराइव कर सकता है, तो मतलब ए को रिप्लेस किया जा सकता है. ये कैंडिडेट की है ए बी, इस कैंडिडेट की ए बी में ए को रिप्लेस कर देंगे. किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ. एफ से रिप्लेस कर देंगे. अब क्या बन जाएगा? एफ बी. नाउ विल टेक द क्लोजर ऑफ एफ बी. if we take the closure of fb, it is fb itself, and f can derive a, so here a also, a and b that can derive c, so here it is c, and c can derive de, so here it is de, and E can derive F. F is already there. So all the attribute it has derived. So we can say this is the super key. Now check for the proper subset of this one. So proper subset of F and B. So if we take the F closure, what will be the result? If we take the F closure, it is F, and F can derive A. So it is FA, means it is not the super key. What about B closure? B closure, it is also not the super key because यहाँ पे check कर लिया हमने. राइट? तो इसका मतलब ये क्या है? एफ बी इज द मिनिमल सुपर की, मीन्स इट इज ए कैंडिडेट की. तो ये कैंडिडेट की भी है, राइट? तो इसका मतलब नेक्स्ट कैंडिडेट की क्या बन गई? एफ एंड बी. नाउ व्हाट आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स? प्राइम एट्रीब्यूट्स आर ए, बी एंड एफ. सो एफ ऑल्सो इंक्लूड, राइट? अब देखना है राइट हैंड साइड में ए, बी या एफ. ए वाला से चेक कर लिया, यहाँ पे एफ. एफ राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो फिर से ऐसी ही फंक्शनल डिपेंडेंसी बन गई, राइट? अब क्या करना है? रिप्लेस कर देना है किसको? बिकॉज ई क्या कर सकता है? एफ को डिराइव कर सकता है. ई एफ को डिराइव करेगा, इसका मतलब क्या किया जा सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है एफ को ई के साथ, राइट? तो यहाँ पे ये कैंडिडेट की है एफ बी. यहाँ पे एफ को रिप्लेस किया जा सकता है ई के साथ, तो क्या बच गया? ई बी. ई बी बच गया. अब क्या करना है? ई बी का क्लोजर लेंगे. ई बी का क्लोजर क्या आ जाएगा? ई बी का क्लोजर ई से ई, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जस्ट ए मिनट. लेट्स टेक द क्लोजर ऑफ ई बी. ई बी क्लोजर. So EB closure is EB, and E can derive F. So here F also. F can derive A. So here A also. A and B can derive C. So C, and C can derive D and E. C can derive D and E. So this is what the
सुपर की, दिस इज व्हाट सुपर की, बिकॉज सभी एट्रीब्यूट्स को क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके प्रॉपर सबसेट्स लेंगे। तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या क्या बनेंगे, ई बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, बी बनेगा। बी सुपर की नहीं है, बी का क्लोजर लेंगे तो सुपर की नहीं है। ई का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं। ई का क्लोजर, ई का क्लोजर लेंगे तो ई आएगा। ई के बाद ई एफ को डिराइव कर सकता है, एफ आ जाएगा। एफ ए को डिराइव कर देगा, एफ ए को डिराइव कर देगा तो ए आ जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। राइट, तो ये भी सुपर की नहीं बनेगी। राइट, तो अगर ये सुपर की नहीं है तो ये क्या है, मिनिमल सुपर की। EB is the minimal super key, and that is the candidate key, right? So we can say this is what the candidate key. So further, EB is the candidate key. EB is the candidate key. Now what are the prime attributes? One more prime attribute is E. E is the prime attribute. Now let's check E in the right hand side. Right. So this FD can be written as C goes to D, C goes to D, and C goes to E. C goes to E. So E is in the right hand side and C is the non-prime attribute. फिर से यही functional dependency बन गई, right? फिर से ये वाली functional dependency बन गई। इसका मतलब क्या करेंगे, अब रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, E को रिप्लेस कर देंगे C से। राइट, E को रिप्लेस कर सकते हैं C से। तो लेट्स सी, तो नेक्स्ट इट इज EB, एंड E को रिप्लेस किया जा सकता है, E को रिप्लेस कर देंगे किससे, C से। नाउ इट इज CB। नाउ टेक द क्लोजर ऑफ CB। क्लोजर ऑफ CB is what, C, D, and C can derive E, so E, and E can derive F, so F, and F can derive A, so here A, and A and B can derive C, so here it is C, and और C तो ऑलरेडी आ चुका है, C ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद क्या हो जाएगा, C can derive DE, C can derive D and E, तो DE भी आ गया, मतलब सभी एट्रीब्यूट्स को क्या कर दिया यहाँ पे, डिराइव कर लिया। इसका मतलब ये क्या है, एक सुपर की है। नाउ विल चेक फॉर द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस वन, C क्लोजर एंड B क्लोजर। B का क्लोजर सुपर की बनेगा नहीं, C का क्लोजर क्या बनेगा, देखते हैं। C का क्लोजर लेंगे, C क्लोजर क्या है, C क्लोजर इज C, D, E, E से F हो जाएगा, F से A हो जाएगा, और फर्दर B को डिराइव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये भी सुपर की नहीं है। अगर ये भी सुपर की नहीं है, ये भी सुपर की नहीं है, तो ये क्या है, मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की मीन्स इट इज द कैंडिडेट की। राइट, तो ये क्या बन गई, कैंडिडेट की। तो नेक्स्ट कैंडिडेट की दैट इज CB, CB। राइट, नाउ वी कैन टेक ए नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज C। तो ये सारे प्राइम एट्रीब्यूट हैं, A, B, F, E और C। राइट, दे ऑल आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। नाउ फर्दर देयर विल बी द कैंडिडेट की और नॉट। तो एक बार यहाँ तक कंफर्म करेंगे, सबको समझ आ गया। ओ, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपने को देखना है इनमें से कोई प्राइम एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में है क्या। तो ए के लिए चेक कर लिया, बी के लिए हमने देख लिया, एफ के लिए हमने देख लिया, ई को भी हमने देख लिया,
राइट हैंड साइड में सी है या नहीं कहीं पे? यस, सी इज देयर एंड ए बी इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ए एंड बी दे बोथ आर द प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसको नहीं ले सकते, नॉन प्राइम टू प्राइम एट्रीब्यूट नहीं बनेगा। राइट। सो फाइनली दीज आर द कैंडिडेट की, और कोई कैंडिडेट की नहीं बनेगी। राइट। So these are the four candidate keys, one, two, three, and four, and this is the answer. Okay, so these are the four candidate key in this case, and I think it is clear to all. Now let's move for the next question. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। So R is the relation with with attributes A, B, C, D, E, and H. Right? These are the attributes. Attributes we can say inside the relation. And functional dependency is given as A goes to B, BC goes to D, BC goes to D, E goes to C, E goes to C, and D goes to A. D goes to A. Then what will be the candidate keys? Right? Try for the candidate keys. What are the possible candidate keys? A is the candidate key. I think A cannot be the candidate key. A is not possible to be candidate key.
Okay, let me simplify. What are the possible candidate keys? So this is the relation. AB is candidate key. I think AB is also not possible. Let's see. So A, B, C, D, E, and H. A, B, C, D, E, and H. These are the attributes. And if we take the closure of this one, it will be A, B, C, D, E, and H. Right? So this is what a super key, right? And if we take the proper subset of this one, that will be the super key or not. What can be the proper subset? Proper subset that may, so proper subset that may be A or it can be A. Let me take the closure of A. So closure of A is A, then B, and further can we derive something? No, we cannot derive. It means क्या कह सकते हैं कि A क्या derive कर लेगा, B को derive कर लेगा. इसका मतलब B को यहाँ से हटा दिया जाए. B को यहाँ से हटा सकते हैं, राइट? B को हटा दिया यहाँ से. अब और क्या किया जा सकता है? और हम ले सकते हैं अ, ये वाला ले सकते हैं ई ई कैन ई का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा ई कैन डिराइव ई कैन डिराइव सी तो ई सी को डिराइव कर देगा तो यहाँ से सी को भी हटा सकते हैं सी को भी हटा दिया राइट नाउ फर्दर डी डी कैन डिराइव डी कैन डिराइव ई तो क्या किया जा सकता है लेट्स सी if we take the closure of d can derive e so here it is de तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं डी की हेल्प से ई को डिराइव कर लेंगे तो ई की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो फाइनली क्या बच गया अपने पास बच गया ए डी एंड एच ए सॉरी इसको ई को डिराइव कर लेंगे डी की हेल्प से ई को डिराइव कर लेंगे और बी को डिराइव कर लेंगे ए की हेल्प से तो क्या बच गया ए डी एच ए डी एच देखते हैं इसका क्लोजर लेके मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या यहाँ पे जस्ट ए मिनट देखते हैं ई क्या कर रहा है ई सी को डिराइव कर सकता है ओके तो हमने सी को कैंसिल कर दिया ए क्या कर सकता था बी को डिराइव कर सकता था तो बी को हमने कैंसिल कर दिया और डी क्या डिराइव कर रहा है डी ई को डिराइव कर सकता है तो हमने क्या कर दिया ई को भी कैंसिल कर दिया ठीक है तो इसका क्लोजर लेके देखते हैं ए डी और एच इसका क्लोजर लेंगे तो ए से क्या आ जाएगा ए आ जाएगा डी आ जाएगा ए डी एच ए की हेल्प से बी आ जाएगा और बी डी की हेल्प से क्या आ जाएगा ई आ जाएगा और ई की हेल्प से सी आ जाएगा ई की हेल्प से सी आ जाएगा ठीक है और और क्या बच गया डी और सी की हेल्प से डी आ जाएगा डी ऑलरेडी आ चुका है ए डी ए बी सी डी ई एच राइट ये आ गया और फर्दर अगर देखें इसके प्रॉपर सबसेट क्या बन जाएंगे प्रॉपर सबसेट ए बनेगा डी बनेगा एच बनेगा तो ए का क्लोजर सुपर की नहीं बनेगा ए बनेगा डी बनेगा एच बनेगा तो ए का क्लोजर क्या नहीं बनेगा सुपर की नहीं बनेगा डी का क्लोजर
वन थिंग, ये सुपर की है। एक तो ये कंफर्म हो गया कि ये सुपर की है। फिर अपने को देखना है कि एक ए का क्लोजर सुपर की नहीं बन रहा है, डी का क्लोजर नहीं बन रहा है, एच का क्लोजर लेंगे तो वो भी सुपर की नहीं बनेगा। फर्दर ए और डी दोनों को मिला के सुपर की तो नहीं बन जाएगा। चेक कर लेते हैं। ए डी से क्या बनेगा, ए बन जाएगा, डी बन जाएगा, डी से ई, डी से ई बन जाएगा, और ए से बी बन जाएगा। और फर्दर सी नहीं आ ई से सी आ जाएगा, और बी और सी से डी आ जाएगा, और एच नहीं आ सकता। राइट, तो इससे एच नहीं आएगा, ये भी सुपर की नहीं हो सकती। और फर्दर इसके वो देखेंगे, फर्दर अगर देखें ए और एच, या तो ये हो सकता है या फिर डी और एच हो सकता है। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं है कि सारे करके देखेंगे, थोड़े ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा आप लोगों को, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो पता लग जाएगा। देखो अब ए और एच का क्लोजर देखें। ए एच का क्लोजर देखेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, एच आएगा, ए आ जाएगा, एच आ जाएगा, ए से बी आ जाएगा, ए से बी आ गया, और और फर्दर कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। डी एच से देखें तो डी से क्या आ जाएगा, डी एच आ जाएगा, डी से ई आ जाएगा, ई से सी आ जाएगा, और फर्दर ए नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमल सुपर की है। मिनिमल सुपर की का मतलब ये कैंडिडेट की है, ये बन गई कैंडिडेट की। ओके, सो ए, डी एंड एच, this is what a candidate key. Now tell me, is it clear to all? Okay, fine. Then what are the prime attributes? So prime attributes are A, D, and H. These are the prime attributes. Now see the prime attribute in the right hand side. Right hand side में इनमें से कोई है क्या? A, ए है क्या राइट हैंड साइड में? नहीं। डी है क्या राइट हैंड साइड में? यस, डी है। और एच है क्या? एच नहीं है, तो मतलब डी है यहाँ पे। इसका मतलब क्या किया जा सकता है, डी को डिराइव किया जा सकता है बी सी की हेल्प से। तो डी की जगह क्या आ जाएगा, ए, डी और एच, ये था। तो यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा, बी सी, बी सी। तो ये क्या आ गया, ए बी सी एच, ए बी सी एच। अब फर्दर क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई डिराइव किया जा सकता है क्या? ए से बी डिराइव कर सकते हैं। देखो ए का क्लोजर लेंगे तो क्या कर सकते हैं, ए का क्लोजर लेंगे तो ए, ए से बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ए से बी डिराइव किया जा सकता है ना, तो बी को यहाँ से हटा सकते हैं। राइट, बी को यहाँ से हटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हटा दिया तो बच गया क्या, ए सी एंड एच। अब ए सी एच का क्लोजर अगर लेंगे तो क्या आएगा, ए से ए आ गया, सी आ गया, एच आ गया, और ए से बी आ जाएगा, और बी और सी के कॉम्बिनेशन से डी आ जाएगा, बी और सी के कॉम्बिनेशन से डी आ जाएगा, और डी से ई आ जाएगा, डी से ई आ जाएगा, और एच ऑलरेडी आ चुका है, तो ए बी सी डी ई एच, ये आ गया। राइट, तो फाइनली ए सी और एच की हेल्प से क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। राइट,
तो सभी एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे डिराइव कर लिया, मतलब ये क्या बन सकता है, सुपर की। ये सुपर की बन जाएगा। और इसके फर्दर प्रॉपर सबसेट देखें तो क्या क्या बनेंगे। ए का क्लोजर सुपर की नहीं बनेगा, बी का सी का क्लोजर लेंगे तो भी सुपर की नहीं बनेगा, एच का क्लोजर लेंगे वो भी सुपर की नहीं बनेगा, राइट। तो इनमें से कॉम्बिनेशन अगर लेंगे वो भी सुपर की नहीं बनेगा, ऑब्जर्व कर लेना। बट इसका कॉम्बिनेशन जैसे कि ए सी ए एच ए एच और CH, ये भी लेंगे तो भी सुपर की नहीं बनेगा, राइट। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, दिस इज द मिनिमल सुपर की एंड दैट इज द कैंडिडेट की। तो A, C and H, दैट इज द कैंडिडेट की। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे क्या क्या बन गया, A, C and H। तो A, D, H और यहाँ पे सी भी क्या हो जाएगा, प्राइम में एट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये भी बन गया क्या, प्राइम एट्रीब्यूट। और ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में सी कहीं पे है क्या, यस सी यहाँ पे है। इसका मतलब रिप्लेस किया जा सकता है किसको, सी को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, ई के साथ, बिकॉज ई इज द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और जो कि डिराइव कर रहा है किसी प्राइम एट्रीब्यूट को, राइट। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे किसको, सी को ई से। लेट्स सी, तो ये था हमारे पास A, C, H और यहाँ पे सी को रिप्लेस कर दिया ई से, तो ये आ गया AE, H। और AE, H का क्लोजर अगर लेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो AE, H आ जाएगा, राइट। AE, H आ जाएगा और उसके अलावा क्या आएगा, AE, H और उसके अलावा क्या आएगा भाई, A से B आ जाएगा और E से C आ जाएगा और और क्या आ जाएगा, D किससे आएगा, B और C के कॉम्बिनेशन से D आ जाएगा। फाइनली ये सारे कुछ आ गए हैं अपने पास, राइट। और अब AE, H इनका क्लोजर लेंगे तो सुपर की नहीं बनेगी, और इनके कॉम्बिनेशन AE और AH, AE, EH और क्या लेंगे, AH, इनका कॉम्बिनेशन लेंगे और इनका भी अगर फाइंड आउट करके देखेंगे क्या, क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो सुपर की नहीं बनेगी। तो फाइनली ये क्या है, मिनिमल सुपर की, दैट इज द कैंडिडेट की। तो एक कैंडिडेट की क्या बन जाएगी, AE, H, ये वाली बन जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया, ई ई भी आ गया है एक सुपर की, ठीक है, सॉरी प्राइम एट्रीब्यूट। तो एक बार यहाँ तक कंफर्म करना, यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके फाइन, नाउ we'll see the e e in the right hand side. Yes, e is present in the right hand side and this is what non prime attribute or prime, this is the prime attribute। तो further ये तो रिप्लेस नहीं कर सकते। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, और कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। फाइनली दीज आर द कैंडिडेट कीज। ओके, so finally these are the candidate keys possible। Now confirm me, is it clear to all?
ओके फाइन। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया था, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था लिखने में। वैसे इसकी तो ये वाली ही आएंगी, बट मेरे क्वेश्चन उसके आंसर के साथ ये मैच नहीं कर पा रहा था, तभी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। बट मैंने देखा कि यहाँ पे ई की जगह क्या क्या था, ए। अब ई की जगह अगर ए होगा तो फाइंड आउट करके देखना क्या आएगा। ठीक है, फिर ट्राई करके देखना, फिर इसका अलग रिजल्ट आएगा। फिर इसकी कैंडिडेट की क्या क्या आएंगी, दैट इज डी ई एच, बी ई एच एंड ए ई एच। ये वाली कैंडिडेट कीज आएंगी। ठीक है, ये ट्राई करके देखना आप लोग खुद से।